और इंग्लिश में समझा करो। एक और आएगा। തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. മ്യൂട്ട് Good morning, all. Good morning, sir. morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. Sir, can you send this in group? It is there already. Group में है ना? There है ना? So in the first part, we'll discuss about your doubts related to this paper. बोलो कौन सा क्वेश्चन डाउट है? Third question, sir. Third question. Okay. The path of a projectile as seen from another projectile is if horizontal component of velocities are equal. Okay. So if you are just considering the path of one projectile with respect to another one, तो path of one projectile as seen from another, उसका meaning क्या है? वो relative velocity ढूंढना है ना? Assume that there is a projectile A, वो ऐसा जा रहा है. And consider that there is another projectile, take it as projectile B. Okay. And in question, it is given that their horizontal velocities are same. Okay. So as their horizontal velocities are same, we can write over here at a particular instant. If you are finding out what about the value of their velocity, so there will be two component of velocities may have. One is something, but if horizontal component of velocities are equal, so we can take it as इसका जो horizontal component है, take it as VHA, horizontal component of A, and इसका जो horizontal component है, that we can take it as something but VH, horizontal component of take it as B. Okay,
It is having some vertical component also. इसका जो vertical component है इसको मान लो v vertical for A and this is v vertical for B. Okay. Now our aim is to find out the path of one projectile as seen from the other projectile ish. So we can find out what about the relative velocity of one or A. Relative velocity of A with respect to B. That is equal to velocity of A vector minus velocity of B vector. तो दोनों का projectile मतलब दोनों का जो horizontal component of velocity हो तो same ही है. So if you are going for VA minus VB, so answer क्या मिलेगा? This VAH component and VBH component will get cancelled. Yes. So we'll get the relative velocity is equal to VAA minus VB. So it depends upon that. We feel that the particle is either moving in upward direction or downward direction. समझा? तो मतलब ये Yes, sir. vertically move कर रहा है, उसका horizontal component है नहीं है. So our aim is to find out the path. तो एक में देख के तो दूसरे को क्या लगता है कि दोनों मतलब एक vertical direction में ही move कर रहा है. So it should be like it is moving in a straight line होना चाहिए. सर स्ट्रेट Not लाइन ha- लिखा था पर हाइपरबोला आंसर दिया है. हाँ पता है हाइपरबोला नहीं है. हाइपरबोला कब होता है हम लोग बाहर से जाएगा तभी होता है. तो सर उन्होंने हाइपरबोला दिया है. स्ट्रेट लाइन बता. लिखा था आंसर. हाँ straight line आना चाहिए. Yes, yes. सर सो दिस विल बी क्लेम ना. Yeah, this will be claimed. Yes. और बोलो. Sir, second question answer is 4. No? Second question answer is 1, 2, 3, 4. Yeah, 4. Oh, yes. 11. और Sir, बोलो. can you tell the fifth question, please? A man can draw a board in still water with a velocity of 8 km per hour. Water is flowing in a river with a velocity of 4. What angle should he row the boat so as to reach the exact opposite point? तो exactly opposite point में जाना है. तो if he is starting from point, आप कौन सा बैच में है? First बैच में, second बैच में? Second. नहीं, first. Sorry. तो अगर A से start कर रहा है, point B पे आ रहा है, तो he should move in a path something like this. So we can Yeah. find out this angle theta should be equal to, this will be equal to VW and this will be equal to VBW. So you can write the sin theta should be equal to VW divided by VBW. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा. तो theta should be equal to nothing but 30 degree. तो with respect to vertical, वो theta का वैल्यू 30 होना चाहिए. और with respect to this flow of river, it should be equal to 30 plus 90. That should be equal to 120 degree होना चाहिए. Sir, They are asking with respect to river flow. So 120 degree with respect to the direction of river flow. बोलो बेटा. sir, what is the meaning of dimensionless quantities? इसको डायमेंशन नहीं होता है. M0, L0, T0. 11th one. 11th one, it is been that of the following dimensionless error is. मतलब dimensionless error मतलब उसको dimensional नहीं होना चाहिए. अगर हमने relative error को देख रहे हैं तो relative error क्या होता है? Error divided by actual value है ना, तो उसका value dimensionless आएगा ना. समझा? Suppose if you are writing L plus or minus delta L. Delta L is error in length and L is actual length. तो relative error क्या होता है? Delta L by L. Delta L का dimension क्या होता है? L होता है. Length का भी क्या रहेगा? L रहेगा. तो ये dimensionless हो गया ना overall. और बोलो. Sir, 21. 21. According to Ohm's law, V is equal to I into R. V is a potential difference, I is electric current, R is a resistance, and B का value दिया है, I का value दिया है, and percentage error in measurement of R in percentage is n percentage. Find the value of n is. तो हमको क्या चाहिए? Percentage error in measurement of R चाहिए. तो R को हम लोग क्या लिखेगा? R can be written as nothing but V divided by I लिख सकता है. So बोलो percentage error in R is equal to V का पावर क्या है? 1 है. I का पावर क्या है? 1 है. तो 1 into percentage error in V plus 1 into हमेशा ऐड ही करता है percentage error in I. समझ बात? तो V पर percentage error कितना है? V क्या दिया है? 11 by 11 into 220 11.
So we can write this will be equal to 11 divided by 220 into 100. That is percentage error in voltage plus what is percentage error in current? Current को क्या दिया है? 10 plus or minus 0.1. So 0.1 divided by 10 into 100. So we can find out what about the value of total error over here. This one get cancelled. ये 2 हो गया तो ये क्या हो गया 5 हो गया. There is 5% voltage में error है plus इसका क्या हो गया 1% हो गया 1% करंट में एरर है तो टोटल रेजिस्टेंस में एरर कितना रहेगा 6% का एरर रहेगा समय बाद सर इसको अगर सिर्फ v इक्वल्स टू IR में सॉल्व करेंगे तो 4% आ रहा था मतलब अगर R के टर्म्स में नहीं लिखेंगे तो मतलब परसेंटेज एरर ऑफ v इक्वल्स टू परसेंटेज एरर ऑफ I प्लस परसेंटेज एरर ऑफ R करेंगे तो नहीं ऐसा नहीं है हम लोग R फाइंड आउट कर रहे हैं V और I यूज करके तो R इज इक्वल टू V बाई I लिखना है उल्टा नहीं लिख सकता है ओके सर आपने आपने डिवाइड क्या क्यों लिखा किया? है V इज इक्वल टू I इंटू R है तो R इज V बाई I है ना बेटा V इज इक्वल टू I इंटू R होता है तो R क्या होगा V बाई I होगा ना नहीं सर वो नहीं मतलब 11/220. रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर क्या होता है if it is x plus or minus delta x what is the percentage error in it delta x by x into 100 वही करेगा ना सुना है परसेंटेज एरर हाँ सर. what is percentage error error divided by actual value into 100 या relative error into 100 है ना बोलो बेटा सर बोलो 13 यस सर A car is starting from a point, travels towards east with a velocity 36 km per hour. Another car starting from the same point travels towards north with a velocity 24 km per hour. Relative velocity of one with respect to other is. तो normal equation use करना है velocity of one with respect to two is velocity of one minus velocity of two. So over here it is given that a car starting from a point and starts towards east. So इसके तरफ जा रहा है with a velocity of 36 km per hour. Another car starting from the same point and travels towards north. So north की तरफ move कर रहा है with a velocity of 24. ये मान लो A है और एक car B है. Car M is to find out relative velocity of one with respect to other. तो B with respect to A कर दो या A with respect to B कर दो. So velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. तो क्या करना है velocity of A minus velocity of B करना है तो ये आएगा तो this is going to our resultant vector है ना बेटा this will give the value of our resultant vector तो इसका वैल्यू क्या रहेगा that is 36 plus 36 का स्क्वायर plus 24 का स्क्वायर का रूट पाइथागोरस थ्योरम है ना गॉट सर और बोलो सर 20th one. तो इसका 20 yeah. In the measurement of physical quantity x is equal to a square b square c raised to 1 by 3 d raised to 3 percentage error introduced in the measurement of quantity can be minimum amount of percentage error in the measurement of x is contributed by तो minimum किसका error होगा वो देखना है A में एक वैसे एरर कितना होगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन A होगा A में एरर कितना था 2 था तो A के वजह से एरर होने वाला है 4%. ये समझ में आया Yes sir. ऐसा B का पावर कितना है 1 है तो B में एरर कितना है 2 तो B की वजह से एरर कितना होगा 1 इंटू 2 तो 2 का एरर होगा अभी देखते हैं C का पावर कितना है 1/3 है तो इट इज 1/3 इंटू एरर इन C कितना था 4 तो ये क्या आएगा 4/3 आएगा नेक्स्ट वन देखते हैं D का इतना 3 है इसका 5 है तो क्या 15 का एरर होगा तो सबसे मिनिमम पूछा है सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज एरर किसकी वजह से होगा 4/3 है वो C की वजह से होता है Okay sir. Thank you. और बोलो 23.
The physical quantity Q is represented by this this one. Find the percentage error in Q is. Same है बेटा. Percentage error find out करना है तो खाली आपको इसका power देखना पड़ेगा. A का power कितना है 2 तो 2 into percentage error in A plus B का power 3 raised to 2 3 raised to 2 into percentage error in B plus C raised to -4 -4 और +4 हमेशा add ही करना है minus नहीं करना है 4 into percentage error in C plus 1/2 into percentage error in D. तो तो हमें 2 into हमेशा ऐड करना हमेशा ऐड करना होता है या पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू डिवाइड कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हमेशा ऐड ही करना है परसेंटेज एरर को. तो 1 plus 8 3/2 into 2 plus 4 into 4 plus 1/2 into 2 सबको आंसर मिल जाएगा. क्या मिलेगा इसका? ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, 16 plus 1 plus ये क्या आएगा 3 plus 2. So it is this will be 2022. और बोलो. सर 20 सेकंड 22. Error in measurement of length of simple pendulum is 0.2% and error in time period is 4%. Maximum possible error in measurement of L by T square is. Same thing बेटा. L का पावर क्या है 1, T square का पावर क्या है 2. तो L into percentage 1 into percentage error in L plus 2 into percentage error in T. तो 1 into L में error कितना था 0.2%, 0.2 plus 2 into time error कितना है? Time error था 4%. तो कितना आएगा एरर 0.2 plus 8 तो 8.2 का एरर आएगा इसमें. सर 19 क्वेश्चन 19th one. U and U2 are units of physical quantities and one are numerical values. Then N into U is equal to a constant. That means N1 U1 is equal to N2 U2. And a numerical value into unit is a constant. यस सर. So 17, N1 sir. by N2 is equal to U1 by U2 by U1. 17. sir. 17. About it 4 hours upstream and 2 hours downstream for covering the same distance. The ratio of velocity of boat to water in river is. Would take 4 hours upstream. तो upstream जा रहा है तो boat का velocity और river का velocity का opposite है. So velocity of boat with respect to ground is going to be velocity of boat with respect to water minus velocity of water. जब ये upstream का case है. जब downstream जाएगा तो velocity of boat with respect to ground is velocity of boat with respect to water plus velocity of water. ये समझ में आया? Yes, sir. Yeah. अभी क्या दिया है क्वेश्चन में? About take 4 hours upstream, 4 and 2 hours downstream for covering the same distance. Distance same cover कर रहा है. So we can write from the equation velocity is distance by time. So distance is equal to velocity into time. तो इधर velocity क्या आएगा? VBW minus VW आएगा. And time कितना लिया है? 4 hours लिया है. Okay. सेकेंड केस में सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अभी वेलोसिटी बढ़ गया तो जल्दी आ जाएगा. तो टाइम कम लिया है 2 hours लिया है. ओके. So we can equate these two. So we can write this is equal to this. That means we can write VBW minus VW into 4 is equal to VBW plus VW into 2. So you can cancel this. ये 2 हो जाएगा. तो 2 VBW velocity of boat with respect to water minus velocity of water is equal to VBW plus VW. तो ये हो जाएगा VBW is equal to 3 VW. तो उसका रेशियो ही पूछा है. The ratio of velocity of boat. So velocity of boat with respect to water divided by velocity of water. That will be equal to 3:1. हमने क्लास में किया है. और बोलो. Thank you, sir. और कुछ क्वेश्चन डाउट है?
बोलो नीट का पेपर में कुछ डाउट है? Sir, question number Hello. 11. Yeah. Question number 11. While measuring the time of fall of a body from a height, a person make an error of 2%, while in the value of acceleration due to gravity, error of 4%. The percentage error in measurement of time of fall is percentage error in the measurement of time of fall is the height a person. Okay. तो पहले क्या करना है, अब टाइम में इक्वेशन निकालना है, मतलब टाइम और ये सब रिलेशन में क्या है. तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. सो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड के लिए इक्वेशन पता है? t is equal to 2u sin theta by g. नहीं, वो ऊपर प्रोजेक्शन वाला केस नहीं है. टाइम फॉर फॉल ऑफ अ बॉडी. हाँ 2h by g. क्या, तो कह रहा है आउट, यू कैन राइट इट लाइक दिस. इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, h हो गया, एंड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आपको टाइम फाइंड आउट करना है, विल यूज दैट इक्वेशन s is equal to ut plus half at square. थोड़ा भी डाउट है तो आप 1-2 सेकंड में इसको डिराइव कर सकता है, कुछ नहीं है. h is equal to 0 हो गया, हाफ g स्क्वायर हो गया, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाय g इज द वैल्यू ऑफ t. ओके, तो अभी इक्वेशन मिल गया तो इजी हो गया. परसेंटेज एरर इन t विल बी इक्वल टू h का पावर कितना है, इसको लिख सकते हैं ना, h raised to 1/2 and g raised to 1/2. This one raised to 1/2, right? Yes, sir. Yeah. So we can find out 1 into 2 into percentage error in h plus half into percentage error in g. तो हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन h में एरर कितना था, h में एरर था 2 प्लस हाफ इंटू g में एरर था 4. So you can write the total error in it. Percentage error in this will be equal to 1 plus 2, that will be equal to 3%. Sir, ninth one. Ninth one, the in a relation s is equal to b divided by b minus c, b का वैल्यू और c का वैल्यू दिया है, then the percentage error in s is. So over here हमको फाइंड आउट करना है s is equal to nothing but b divided by b minus c का वैल्यू फाइंड आउट करना. तो b का वैल्यू तो दिया है, b का वैल्यू दिया है which is nothing but 5 plus or minus 0.1 divided by b का वैल्यू था 5 plus or minus 0.1 minus c का वैल्यू कितना था 2 plus or minus 0.2. तो पहले क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो सब्ट्रैक्शन है उसको करता है. तो 5 plus or minus 0.1 divided by, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा आंसर, 3 plus or minus 0.3. 0.3. Good. तो we can find out what about the value of percentage error in s पूछा है. तभी क्या हमने दोनों वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं, तो परसेंटेज एरर इन s will be equal to percentage error in this plus percentage error in this, है ना, दोनों का पावर बांटा. तो फर्स्ट में परसेंटेज एरर कितना है, 0.1 डिवाइडेड बाय 5 into 100, प्लस सेकेंड में परसेंटेज एरर कितना है, 0.3 डिवाइडेड बाय 3 into 100. तो इसका वैल्यू क्या आएगा, we can write this will be equal to 10 divided by 5, तो इसका क्या आएगा 2% आएगा. इसका क्या आएगा, this will be equal to 10% का आएगा, है ना, 30/3 का 10% हो गया. तो पूरा मिला के कितना हो गया, 12% हो गया. समय Sir, बोलो 18. बेटा, बोलो बेटा क्या बोल रहा है. Sir, in Question number 15.
बोलो, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो Sir, आगे बोलो। in fifth question, And do we have to consider the significant figures in the fifth question? okay, 1 minute. एक मिनट. Yeah, and fifth one, L plus B is, yeah, we need to consider what? The significant figures. नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एडिशन कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? Addition. तो क्या देखना है? Okay, sir. डेसिमल पॉइंट. डेसिमल Decimal पॉइंट्स. point. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा डेसिमल पॉइंट्स देखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है. तो इसमें ओनली डेसिमल पॉइंट्स देखना है. तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर में भी ओनली 1 का डेसिमल पॉइंट्स होना चाहिए. तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है. Yes, sir. Next one it is 18. It is Yes, by repeating the same measurement several times, the error that can be reduced is while measuring the same several times. So we can reduce that systematic error. Actually ये theory part है. Theory part मतलब आपका CBSE में इसका theory लिखा है, what is systematic error और random error क्या होता है, gross error क्या होता है, ठीक है. तो आपका जो PDF भेजा है उसमें भी है, आप उसको रीड कर दो. मतलब वो क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ थियरी पार्ट है. नॉर्मली ऐसा कुछ जेई में पूछेगा, ठीक है. तो आपको मतलब सीबीएसई का कुछ एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ थियरी पार्ट. तो आपको जो पीडीएफ भेजा उसमें पेज नंबर 6 में एक बार रीड करो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर करके. सर तो 15 एरर को हम लोग 15th बेसिकली वाला. एरर को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. One is nothing but a systematic error, and second one is nothing but a random error, and third one is nothing but a gross error. ठीक है. And systematic error मतलब अगर हमने कुछ faulty instrument use कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो error होता है, that is nothing but systematic error. तो हम लोग वो करने से पहले, मतलब आपने अगर एक weighing machine देखा है, आप उसका वो यूज करके आप मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले ही उसमें मान लो 0.1 दिखा रहा है, तो हमको पता है कि ऑलरेडी मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब 0.0 तो नहीं दिखा रहा है. तो हम लोग जो फाइनल आंसर मिलने के बाद 0.1 कम करेगा. तो दैट टाइप ऑफ आर नॉट सिस्टमैटिक एरर. ठीक है. So 16. जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेस. तो जीरो एरर का मतलब मैंने अभी बोला ना, वही सेम ही है. मतलब अगर जीरो एरर का मतलब है कि हमने जब मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा है तभी वो जो डिवाइस में 0.0 शो करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ शोइंग 0.0 इफ इट इज शोइंग समथिंग एल्स, देन इट इज नॉट अ सिस्टमैटिक एरर. Okay. रैंडम एरर का मतलब है कि आपने अच्छा खासा डिवाइस यूज कर रहा था, बट आपने कुछ गलती कर दिया बीच में, रैंडमली कुछ गलती हो गया, या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से कुछ गलती हो गया, हमको पता नहीं चल रहा मतलब क्या हो गया उसके अंदर. तो सिस्टमैटिक एरर है, हम लोग मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है. बट अगर आपने मेजरमेंट करा था मतलब 10.3 था, आपने गलती से 10.2 लिख दिया, ठीक है, तो रीडिंग करने का टाइम में कुछ गलती कर दिया, ऐसा सब सिस्टमैटिक एरर नहीं है. उसको हम बोलते हैं कि रैंडम एरर बोलता है. ओके. Okay. और बोलो 14th one. एंड सर व्हाट इज ग्रॉस एरर? ग्रॉस एरर मतलब ये भी है, मतलब आपने प्रॉपरली रीडिंग नहीं ले रहा है, मतलब चांसेस ऑफ जो भी एरर होने का चांसेस है उसके लिए आप प्रॉपर मतलब सेटअप नहीं किया है, मतलब ऐसा कुछ रीडिंग ले रहा है उसमें विंड का इफेक्ट हो सकता है, बट आपने वो विंड को जो इफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट कर दिया ऐसा.
और किस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट यूज करना था आपने उस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहा है. ओके, और बाई टाइम वाइज इंस्ट्रूमेंट को अपने सर्विस नहीं कर रहे तो उसको कुछ इश्यूज हो सकता है, कुछ लाइक केयरलेसनेस की वजह से कुछ शेयर वगैरह हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. वो सब हमने अगर ठीक से मेजरमेंट नहीं ले रहे उसको ग्रॉस एरर बोलता है. Yes, sir. 15th one. 15th one, the length of a strip measured with the help of a rod is 10.0 centimeter. Width is measured with a vernier caliper 1.00 centimeter. Least count of meter rod is this one and vernier caliper is 0.1. What will be the error in area is? ये भी ऑलरेडी बोला ना बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन में एरर नहीं दिया है तो क्या देखना है, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स देखना है. कितना नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स होगा उतना ही एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा. मतलब इसमें लेंथ में एरर कितना हो सकता है, ऑलरेडी वो क्वेश्चन में दिया भी है. अगर ये पार्ट नहीं दिया ना तो भी हम लोग उसको वही लेता है. ठीक है, इवन इफ दे आर नॉट गिवन दिस पार्ट विल राइट एज 10.0. उसका मतलब है इसमें मैक्सिमम एरर 0.1 का हो सकता है. एंड width is measured with a vernier caliper, उसमें दिया है 1.00 लिखा है, उसका मतलब है इसमें मैक्सिमम 0.01 का एरर हो सकता है. Got it? What will be the error in its area? एरिया मेजरमेंट करे तो एरर कितना होगा, तो L into W करना है. तो L into W करेगा तो हमको आंसर तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा. 10 plus or minus x is equal to, we can write the relative error in first, that is 1 divided by 10 plus 0.01 divided by 1. So we can write this x will be equal to 0.11. Got it? Sorry, 0.2, not 0.11, 0.2. अगर आप Sir, 10 को 0.02 2 2 0.2 0.1 10 से मल्टीप्लाई करेगा ना, मैं लिख देता हूँ. Yes. x divided by 10 is equal to 0.1 divided by 10 plus 0.01 divided by 1. तो इधर 10 को LCM दिया तो 10 into, तो इधर 0.1 आएगा प्लस इधर 0.1 आएगा, है ना. 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. तो ये 10 और 10 गया तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा. ठीक है, नॉट 0.11, 0.2. 0.2 का एरर होगा, प्लस और माइनस 0.2 का एरर. Sir, 25. 25. A man can swim at a speed of 3 km per hour in still water. He wants to cross a river 500 meter wide, flowing at 2 km per hour. He keeps himself always at an angle 120 with the river flow while swimming. At what point on the opposite bank will he arrive? What point on opposite bank? मतलब basically they are asking to find out what about the value of drift over there. Okay, so x का value find out करना. So first we can draw the situation. Let's say these are representing the banks of a river. A boat is starting from point A, and after some times it reaches a point B, and it is moving through a path something like this. ऐसा जा रहा है वो, ठीक है? Sir, So ये that it neat is paper है making ना? an angle. Follow it. Neat ये paper है neat ना? का paper. Yes, yes, yes. So this is representing the velocity of water, and this is representing the velocity of boat with respect to water. Okay. So मान लो after that this velocity of boat with respect to ground हम लोग देख रहे हैं, that is velocity of boat with respect to water plus velocity of water. ये पूरा मिला के मान लो with respect to ground देखे तो boat ऐसा जा रहा है. This is representing velocity of boat. तो मान लो पॉइंट सी पे आ रहा है, तो हमको यही फाइंड आउट करना है, इसका ड्रिफ्ट कितना हो गया वो कैलकुलेट करना है. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो दिस बोट इज मेकिंग एन एंगल 120. तो इतना 90 होता है तो ये पूरा अगर 120 है तो ये क्या रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, राइट. So we can resolve this into two components. One is along x-axis and another one is along y-axis. तो इसका velocity दिया है, velocity of boat with respect to water क्या दिया था, river flowing at the rate of 3, man can swim at the rate of 3. तो ये 3 हो गया. तो 3 का वाला कंपोनेंट होगा 3 cos 30
d cos 30 is root 3 divided by 2. तो ये क्या आएगा 3 root 3 divided by 2 हो गया. And this component will be equal to 3 sin 30. Sin 30 1 by 2 होता है, so this will be equal to 3 by 2 हो गया. Okay. Now we can find out, just resolve the things along x and y axis. So along x axis and y axis. Along x axis, what about the value of velocity? एक velocity है which is velocity of river. Velocity of river कितना था 3 था. Okay. Velocity of boat है वो opposite direction में. तो net velocity क्या हो गया 3 minus 3 divided by velocity of river 2 है, sorry 2 है. The velocity of river is given as 2. So we can write this will be equal to nothing but 2 minus 3 divided by 2. तो ये क्या जाएगा 4 minus 3 that is 1 divided by 2 हो जाएगा. ठीक है. Now we can find out what is velocity along y axis. Y axis का direction में velocity होगा 3 root 3 by 2. तो ये हो गया 3 root 3 divided by 2. Now we can find out what about the value of time taken to cross the river. तो width of river क्वेश्चन में दिया है 500 मीटर. तो width of river हो गया 500 मीटर. अभी देखो आंसर में भी किलोमीटर में दिया है, बट ये ओनली पार्ट वेलोसिटी भी सब किलोमीटर में दिया है, बट ये 500 मीटर में दिया है. 500 मीटर क्या होता है 0.5 किलोमीटर होता है, उसको भी आप किलोमीटर में लिख दो, वरना दो अलग अलग सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट में हो जाएगा. तो यू कैन राइट डिस्टेंस over here is equal to width of river, that is 0.5 kilometer or 1/2 kilometer. तो टाइम क्या होगा, टाइम is equal to distance divided by velocity. तो distance is 1/2 divided by velocity. Velocity क्या हो गया 3 root 3 divided by 2 हो गया, तो 2 2 cancel हो गया, and this will be equal to 1 divided by 3 root 3 हो गया टाइम. अब ये टाइम का वैल्यू हम लोग x axis में यूज करेंगे. If you are writing the equation on x axis, तो x displacement is equal to velocity into time. Velocity का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, this is 1/2, and time कितना लिया है, टाइम लिया है 1/3 root 3, तो 1 root 3 है. So you can write the final answer will be equal to 6 root 3. So 1/6 root 3. Got it? Yes, sir. So question number 42. Question number 42. Sir, wait, I just want to copy it. Yes. Done. Sir. 42 बोला था ना. Yes, sir. Particle start with a velocity 2 meter per second and moves in a straight line with a retardation of 0.1 meter per second square in the first time at which the particle starts with a velocity of 2 meter per second. It moves in a straight line with a retardation of 0.1 meter per second square. The first time at which particle is 50 meters from the starting point is. Okay. So time find out करना है, distance and velocities are given, right? तो नॉर्मल इक्वेशन यूज कर सकता है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, स्टार्टिंग विद द वेलोसिटी, तो u का वैल्यू दिया है, सो इट इज स्टार्टिंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड and moves in a straight line with a retardation, so acceleration is 0.1 minus retardation दिया है. And the first time at which the particle is 15 meter from the starting point is, so distance we can take it as nothing but 15 meter. So we can use that equation, s is equal to ut plus half at square. So s का value we can write it as nothing but 15 is equal to u we can take it as nothing but 2, and time we can take it as t minus half into a we can take it as 0.1 into t square. So we'll get a quadratic equation. While solving this quadratic equation, we can find out what about the value for this t over here. So let's say if you are multiplying the 2, so we can write 30 is equal to 4t minus t square 0.1. So if you are multiplying it with 10,
So we can write 300 is equal to 40t minus t square. So you can write the quadratic equation t square, minus t square minus 40t plus 300 is equal to 0. So while solving this, we can find out what about the value of time we are getting. सर दो आंसर आएगा. क्या क्या आंसर है? सर 10 और 30 दो 10 आंसर आ रहे हैं. हाँ सर, सिर्फ हाँ, पॉजिटिव 10 नेगेटिव से करेंगे. हाँ 10 भी आ रहा है और 30 30 एक मिनट मल्टीप्लाई करे तो 300 ऐड करे तो -40 तो -30 माइनस 10 आएगा ना. नहीं सर दोनों माइनस पॉजिटिव है. 30 t माइनस t माइनस 10 t माइनस 30 30 10 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं सर. 30 and 10 there are two possibilities. तो एक पॉसिबिलिटी कब होता है? अभी बोलो दो वैल्यू क्यों आया? पहले इधर से स्टार्ट करेगा. ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में देखो एक और सेंटेंस दिया है, रिटार्डेशन द फर्स्ट टाइम. समझा? उसका मतलब क्या है? दो टाइम में 15 में आ रहा है. यस सर. 15 मतलब 10 इज इक्वल टू टाइम 10 में भी आ रहा है 20 में भी आ रहा है. ऐसा दो टाइम क्यों आ रहा है? सर 30 है वो. सॉरी 30. तो 10 में भी आ रहा है 30 में भी आ रहा है. ऐसा क्यों आ रहा है? दो टाइम क्यों आ रहा है? बिकॉज ये रिटार्डेशन करके जा रहा था. मान लो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है, इधर से कितना डिस्टेंस में चाहिए था हमको? 15 मीटर में. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है 15 मीटर में. पहले ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करके मतलब रिटार्डेशन करके जा रहा है. तो ऑब्जेक्ट का स्पीड कम होते पहले 10 सेकंड के बाद एक बार इसको क्रॉस कर दिया, 15 में तो आ गया. उसके बाद आगे जा रहे हैं, स्पीड कम हो रहा है, बाद में क्या रस पे हो गया, फिर वापस आ रहे पॉइंट में. तो दो टाइम में 15 पे आ गया था. जब जा रहा था तभी भी है और व्हेन इट इज कमिंग बैक तभी भी है. गॉट इट? तो इसलिए व्हेन टाइम इज इक्वल टू 10 एंड टाइम इज इक्वल टू 30 इट वाज ओवर हियर. इसलिए क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट टाइम पहले कब आएगा? पहले 10 सेकंड में आएगा. तो 10 इज आंसर. गॉट इट? समझ में आया? यस सर. Sir, can you explain that last part? ये पार्टिकल अगर मान लो आपने ऐसा सोचो कि पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में आपने प्रोजेक्ट किया है. ओके, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे आएगा. तो अगर हमने इधर एक पॉइंट कंसीडर किया है तो जाते वक्त भी ये पॉइंट से जाएगा और आते वक्त भी जाएगा ना. तो दो टाइम में पार्टिकल वो पॉइंट पे आ रहा था. समय बाद 10 सेकंड में जब जा रहा था और 30 सेकंड के बाद जब वापस आ रहा है तभी भी वो सेम पॉइंट पे आ रहा है. वो दोनों टाइम हमको मिल रहा है इधर. Okay. बिकॉज वो दोनों टाइम के लिए तो सेम ही है. इन पोजीशन स्टार्टिंग से देखे तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हमको दोनों टाइम मिलेगा. बट उसमें से फर्स्ट टाइम पूछा है, मतलब मिनिमम टाइम पूछा है. अगर सेकंड टाइम कब आएगा पूछे तो 30 होगा आंसर. और बोलो. सर 43. 29 43. Body traveling with a uniform acceleration crosses two points A and B with a velocity 20 and 30 respectively. Speed of body at midpoint of point B. The body traveling with a uniform acceleration crosses a point A. This is point A. Another point over here, take it as point B. Crosses two points A and B with a velocity. तो इसको क्रॉस किया है 20 से और इसको क्रॉस किया है 30 से. Speed of body at the midpoint. तो midpoint में जो है उसका velocity find out करना है. So just assume that distance from point A to B is nothing but 2s. So this we can take it as s and s each, right? Now Rm is to find out what about the value of velocity at the midpoint. So let's say velocity at midpoint is equal to v, and it was moving with a constant acceleration of a. So if I am taking this is initial and this is final, we can find out what about the value of acceleration. So we know the value of initial velocity 20, we know the value of final velocity that is 30, we know the value of displacement that is equal to 2s. So acceleration का value find out करना है. So we can use that equation v square minus u square is equal to 2s. So we'll get the value of a is equal to v square minus u square divided by 2s. So we can write v square का value था which is 900 minus and u square का value था that is 20, so that we can take it as 400.
divided by this we can take it as 2 into s. We don't know what the value of s, just keep it as s only. So this will be equal to 500 divided by 2s. Now we can apply Sir. our equation between, बोलो बेटा, सर 4s होगा ना वो 4s क्योंकि होगा. s को हमने 2s लिया है. हाँ, yes 2s लिया, yes 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 yes. तो into 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा. ठीक है, और इसको आप ऐसा लिख दो कि 500 divided by 2, 250 divided by 2s लिख दो. Okay, now we can take, this is our initial point and this is our final point. So second situation में initial velocity हो गया 20, final velocity हो गया v, वो तो ढूंढना है. Acceleration हमने already find out किया first situations, that is 250 divided by 2s, and displacement हो गया s. फिर से हम लोग same equation use कर सकता है, that is v square minus u square is equal to 2s. Then second situation also, if you are using the same equation, v square minus u square is equal to 2s. Final velocity we need to find out. Initial velocity is nothing but 20, that is 400, is equal to 2 into a is nothing but 250 divided by 2s into s. So s is cancel हो जाएगा, ये 2 और 2 cancel हो जाएगा. So with the value of v square will be equal to nothing but 650. All right. So we can find out the value of v, that will be equal to under root of 650. Got it? यस सर. Sir, सो wait a 44 का minute. आंसर क्या आएगा? 44 का, Sir, wait a minute. yeah. तो 625 is 25 का होता है, तो 25 से थोड़ा ज्यादा आप ऐसा आंसर लिख सकते हो इसको, 25 point something. Done, sir. Yeah. और बोलो 39 बोला था ना कोई? The नहीं सर, 29. 44. 29. Yeah. 29. When due east along the two parallel rail tracks, two trains moving with the same speed and opposite direction have the stream track of one double that of other. The speed of each train is. तो क्वेश्चन का मीनिंग है, एक ट्रेन जो हवा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा जो ट्रेन है that is moving in the direction of air or airflow. So if you are in a train and that train is moving in the direction of airflow, so we can write the like velocity of air with respect to train will be equal to velocity of train minus velocity of air, right? इक्वेशन आप ऐसा लिख सकता है. और दूसरा जो इक्वेशन है वो आप लिख सकता है कि विंड का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो मान लो एयर ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड आप ट्रेन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन विल बी इक्वल टू नथिंग बट उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो जाएगा. तो एक रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी कम रहेगा. उसमें जो डिफरेंस है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ, जो ज्यादा वाला है वो कम वाला से 2 टाइम्स ज्यादा है. सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ दैट विंड is equal to 2 times of velocity of train minus velocity of wind. समझा? Can you repeat this again? विंड इस तरह फ्लो कर रहा है विद द वेलोसिटी vw, एंड जो ट्रेन है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी vt.
तो what is velocity of wind with respect to train? Velocity of wind minus velocity of Velocity of wind minus velocity of train. तो बट ट्रेन का दोनों का डायरेक्शन ऑलरेडी ऑपोजिट है, तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मिलेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. दो ट्रेन है ना सर? हाँ, दो ट्रेन है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये जो लिखा है समझ में आया कि नहीं? ये Yes, सिचुएशन समझ में आया। सेकंड सिचुएशन में विंड का डायरेक्शन और ट्रेन का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। Got it? So we can write what is the velocity of this wind with respect to train. VW minus So we can write that is equal to VW minus VT या VT minus VW पर भी एक। So we can write अगर they are moving in opposite direction, velocity of train minus velocity of wind. We can write this is velocity of wind plus velocity of train is 2 times of velocity of train minus velocity of wind. So you can write So why 2 velocity times? of wind. वो क्वेश्चन में दिया है, वो क्वेश्चन में दिया है। The Okay. speed of track one double that of other दिया है, समझा? Okay, The sir. speed of each train. तो speed of train और speed of wind में क्या relation दिया है करके find out करें। So we can write it like this. This velocity of train is equal to 2 times of velocity of train minus 2 times of velocity of wind. तो इसको हमने लेफ्ट साइड में लिखेगा तो 3 times of velocity of wind is equal to velocity of train मिलेगा। तो velocity of train is 3 times of velocity of wind, ऐसा आएगा, समझा? Okay, sir. 3 times of that of wind, ऐसा। सर 44 का सर आएगा। बोलो बेटा, बोलो। सर और इसमें दिया है कि ट्रेन का वेलोसिटी डबल है ना, तो सर 2t लेना ट्रेन का चाहिए। नहीं, ट्रेन का वेलोसिटी नहीं है। डायरेक्शन हैव अ स्ट्रीम ट्रैक। स्ट्रीम मतलब एयर फ्लो, ओके। वाटर स्ट्रीम मतलब वाटर का फ्लो, एयर स्ट्रीम मतलब एयर का फ्लो। तो स्ट्रीम रिप्रेजेंट्स जो क्या चीज फ्लो कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है, एयर का रिप्रेजेंट। सर तो ये नेट डायरेक्शन से क्या मतलब मल्टीप्लाई आपने किया नेट डायरेक्शन? जो ट्रेन का जो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, हाँ ओके। एक को हवा लगता है कि मतलब 10 किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, दूसरा को लगता है कि वो 20 किलोमीटर पर आवर पे आ रहा है, ऐसा। यस सर, थैंक यू। और बोलो। 44 का सर क्या आएगा? 44 it is given that check up only correct statements in the following. A body has a constant velocity has a constant velocity and still can have a varying speed. Now velocity constant है तो speed तो vary नहीं करेगा। एक मिनट। Body has a constant velocity, velocity constant है मतलब उसका magnitude भी constant है, direction भी constant है, तो velocity vary नहीं हो सकता है। A body has a constant speed but still it can have a varying velocity. या वो possible है, मतलब उसका अगर direction change कर रहा है तो possible है। मतलब speed तो same है but मान लो circular motion में move कर रहा है with a constant speed. A body have a constant speed and cannot have any acceleration. ये हो सकता है because direction change करने की वजह से acceleration हो सकता है। The body in motion under force acting on it must have a work done upon it. No, जरूरत नहीं है work done होना करके। अगर work का direction और displacement का direction perpendicular है तो work done by that force 0 भी हो सकता है। तो थर्ड वाला हो सकता है फिर नहीं? थर्ड वाला नहीं हो सकता है। बॉडी हैज अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो आप सोचना है तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है। क्या सर? स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है। हाँ सर, अगर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो अलग सकता है ना, रहा डायरेक्शन हाँ। चेंज तो अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो पॉसिबल है ना। हाँ। समझ में आया बात?
तो एक्सेलरेशन पॉसिबल है, तो इधर क्वेश्चन में क्या अच्छा, दिया, कैन हाँ। नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं Okay. है, तो वो गलत है, एक्सेलरेशन पॉसिबल है। और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? Sir, 21. 21 A ship is moving westward with a velocity with a speed of 10 km per hour, and a ship B 20 kilometers south of A moving northward with a velocity with a speed of 10 km per hour. Time after which the distance between them becomes shortest. तो हमने किया था, याद है, distance, what is a condition for collision and condition for like minimum, अगर collision नहीं आ रहा है तो minimum distance के लिए क्या करना है, वो same concept use करके solve करना है। So a ship is moving westwards, तो आप just consider कर सकता है जो ship A है वो west के तरफ move कर रहा है, तो हम लोग ऐसे लेते हैं, this is north, this is south, this is east and this is west. The ship is moving along this direction westward with a speed of 10 km per hour, and ship B, which is 100 kilometers south, 100 kilometers south of A, तो A का साउथ का डायरेक्शन में, इधर A है तो मान लो शिप B इधर है, A इधर से साउथ की तरफ 100 किलोमीटर में है, ओके, is moving northwards with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, एक इधर है इस तरफ जा रहा है with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो शिप है वो ऐसा जा रहा है, ये जो शिप है ऐसा जा रहा है, तो पूछा है ये दोनों के बीच में सबसे मिनिमम द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिकम्स शॉर्टेस्ट इज। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर आपको मिनिमम टाइम चाहिए तो क्या होना चाहिए, दोनों का वेलोसिटी जो वेक्टर परपेंडिकुलर टू each other, perpendicular to the direction of that position vector, तभी होगा ना। तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक पार्टिकल को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, तो इधर ही कैन कीप A at rest और ही कैन कीप B at rest, तो किसको रेस्ट पे लाना है, A को रेस्ट पे लाना है, तो A का वेलोसिटी 10 कम कर दो, तो हमने क्या किया, अगर A को रेस्ट पे लाना है तो A का वेलोसिटी 10 कम कर दिया, तो B का वेलोसिटी 10 कम करना पड़ेगा, सो A को हमने रेस्ट पे कर दिया, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, बिकॉज हमने दोनों वेक्टर को ऐड करेगा तो आपको A वेक्टर मिलेगा, तो दिस वेक्टर विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10√2, आई थिंक कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, अब समझ सकता है ना। तो ये हो गया 10√2 वेलोसिटी से ये जाएगा 10 90 डिग्री पे ऐड कर दिया तो 10√2 मिलेगा। ये अभी फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा ये पोजीशन वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर, देन दे आर गोइंग टू मेक एन एंगल 90 डिग्री, तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ, मतलब ये डिस्टेंस पूछा है तो हमको पता है ये डिस्टेंस कितना था 100 दिया था, और ये हमको पता है कि 10 10 है तो एक्जैक्टली 45 डिग्री पे आएगा, ये 45 है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ये डिस्टेंस, सॉरी दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये डिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा 10 sin 45, सॉरी 100 sin 45, sin 45 क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय √2 होता है, तो इसको 50 into 2 लिखो तो दिस कैन बी रिटन एज 50√2, समझा? Yes, sir. ओके सॉरी क्वेश्चन में टाइम पूछा है, सर डिस्टेंस टाइम पूछा है, द टाइम आफ्टर द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 50√2 by डिस्टेंस 10 फाइंड हो आउट जाएगा। किया है, हां बट तो आपको तो ये डिस्टेंस ढूंढना है, मतलब ये इधर से इधर तक ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना है वो पूछा है, नॉट डिस्टेंस, तो टाइम वी कैन टेक एज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 50√2 होगा, 50√2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना था 10√2, तो यू कैन राइट टाइम रहेगा 5 क्या कौन सा यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में होगा, तो 5 आवर्स। अगर डिस्टेंस पूछे तो 50√2 मिनिमम डिस्टेंस एंड टाइम टेकन टू अटेन दैट मिनिमम डिस्टेंस इज 5 आवर। सर 45 45 The distance traveled by a particle starting from rest moving with an acceleration of 4/3 in third second s. तो distance traveled in the nth second, Sn का equation use करना है।
is equal to u plus a into n minus half, right? तो फॉर्मूला थर्ड सेकंड में पूछा है, इन द थर्ड सेकंड में पूछा है, तो n का जगह पे 3 पुट करना। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 in a time of 3 seconds, and हो गया, and divided by 3 minus 1/2. This is 4 divided by 3 into 6 minus 1, that is 5 divided by 2. So you can write this will be equal to 2, that is 10 divided by 3. और बोलो, और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? सर 34 का एक बार बताओ ना। 34 यस सर, मैं सेकंड बैच का, सर फिर मैं ट्राई किया ये। नहीं छोड़ दो। नहीं सर, वो मतलब वैसा था कि सर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए ना। देखा है, छोड़ दो। ओके सर। So we'll start with the next topic, which is nothing but Newton's laws of motion. So as we discussed that basically we are having two part. One is something but dynamics, and सर न्यू चैप्टर। yes, new chapter. So in mechanics, basically we are having two parts. One is dynamics, another one is kinematics. So in kinematics, we discussed about what about the motion of particle, distance, displacement, velocity, acceleration, etc. But there we are not discussing why the particle is accelerating. So in the second part, which is not about dynamics of mechanics, we'll discuss about the motion of an object with considering the reason why the particle is accelerating, uska reason kya hai, and other things. Okay. So around the chapter heading, Newton's laws of motion. It is second part of kinematics. No, kinematics is over. It is second part of mechanics, or part of first part of dynamics.
So basically in this chapter we'll discuss about Newton's first law, second law and third law and its applications. Okay. So we'll start with this Newton's first law. I think you know the statement for it. What is the statement for Newton's first law? Everybody. What is the statement? Every body remains to be in the state of motion or rest unless in motion, then it will continue. Unless an external body acts. Unless an external External force is unequal force. unbalanced force acts upon it. acting on it. Yes. So the statement for it is every body continuous in its state of rest. You can write the statement every body continuous in its state of rest. In its state of rest or of its uniform motion or of its uniform motion along a straight line or of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by an external force. The unbest force. Okay. Yes, sir. Sir, 1 minute. बोलो बेटा। सर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी खत्म हो गया है। या वो भी खत्म हो गया। ओके, लिख दिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, 1 minute. Now we'll discuss in detail about what it exactly represents. ठीक है? ये Newton's first law क्या है? Here हमने लिखा है every body continuous in its state of rest or of its uniform motion along a straight line. अभी आप ये खाली ये दो underline किया है, वही statement को देखो. State of rest. State of rest means एक particle rest पे है. Okay? Second one दिया है or of its uniform motion along a straight line. Uniform motion along a straight line means एक particle है वो constant velocity से एक straight line में move कर रहा है. And ये दो statement है उसके बीच में हमने और लिखा है, ठीक है? और so if you are writing it as A or B, तो उसका मतलब है condition A या condition B. ठीक है? आप first condition ले लो या second condition ले लो. That means something should be common in A and B. So A में लिखा है state of rest और uniform motion along straight line. ये दोनों में कौन सा चीज constant है, मतलब कौन सा चीज same है? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. एंड हमने लिखा है ए कंडीशन और बी कंडीशन, मतलब देयर शुड बी समथिंग कॉमन इन बिटवीन ए एंड बी. तो इसमें कौन सा चीज कॉमन है? Sir, the net force acting on it is 0. ने फोर्स तक नहीं आया और बोलो. Direction. नहीं, डायरेक्शन नहीं, एक तो मूव नहीं कर रहा तो उसको कुछ डायरेक्शन तो ही नहीं है. एक्सेलरेशन इज जीरो. ठीक है? तो एक पार्टिकल रेस्ट पे है और दूसरा जो पार्टिकल है इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है? तो एक्चुअली न्यूटन विल ट्राई टू से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसका मीनिंग खाली इतना है
state of rest or uniform motion along a straight line represents that acceleration of a particle is equal to 0. आप उसका उल्टा सोचो, acceleration 0 वो कब हो सकता है? when velocity is changing. velocity change करेगा तभी तो acceleration होता है. तो velocity change कब नहीं होता है? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो velocity change नहीं होगा. वो अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है along a straight line, अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो भी एक्सेलरेशन होगा, तो भी वेलोसिटी चेंज होगा. इसलिए लिखा है कि along a straight line. तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 रहेगा या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. तो ये पूरा स्टेटमेंट का मीनिंग क्या लिखना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. ओके, अभी नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है एक्सेलरेशन 0 कब होगा? कब होगा एक्सेलरेशन 0? तो जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल या बाहर से फोर्स कुछ एक्ट नहीं एक्सटर्नल करे. फोर्स नहीं आएगा. तो ये पूरा स्टेटमेंट का मीनिंग खाली इतना है, if A is equal to 0, A will be equal to 0 if F external is equal to 0. तो पूरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का मीनिंग खाली इतना है, फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा. ठीक है, एंड वो फोर्स कौन सा फोर्स चाहिए? इंटरनल फोर्स नहीं चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इंटरनल फोर्स है तभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. ओके, तो पूरा स्टेटमेंट का मीनिंग क्या इतना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0. तो इसको हमने उल्टा भी बोल सकता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा. सो एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो पार्टिकल एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा. अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है तो पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन तो फर्स्ट इसका लॉ मतलब ये भी है ना, तो इसका मतलब ये भी होगा ना कि मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहने का कोशिश करेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स ना एक्ट कोई करे. बाहर से फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. हाँ. Yes. या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होगा until and unless an external force is acting on it. तो ओवरऑल यही बोल रहा है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे. अगर एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो पार्टिकल विल हैव सम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, अभी हम देखते हैं whether this situation हमेशा सही होता है कि नहीं होता है. ठीक है, assume that there is a person, he is trying to move from point A to B. ठीक है, पर्सन है वो A to B पे जा रहा है, वो वॉक करके A to B जा रहा है. तो बोलो what is the external force which is allow him to accelerate from point A to B? AD to G. फ्रिक्शन. फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स. तो अभी हम देखते हैं कौन सा उसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. एक तो बोला कि ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर है? सर टुवर्ड्स द ग्राउंड सेंटर ऑफ द अर्थ. तो mg राउंडवर्ड एक्सर्ट करेगा. तो ये mg की वजह से ये पार्टिकल इस तरफ एक्सेलरेट कर सकता है? नहीं सर. No sir. नहीं हो सकता. अभी आपने बोला फ्रिक्शन, तो अगर पार्टिकल A to B जा रहा है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है? B2 है. फ्रिक्शन का B2 होगा. B2 है. अगर फ्रिक्शन इस तरफ एक्सर्ट कर रहा है तो हाउ द पार्टिकल विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स राइट? सर एयर फोर्स परपेंडिकुलर है ना. परपेंडिकुलर है ना, मतलब परपेंडिकुलर mg था क्या? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो नेट फोर्स. फ्रिक्शन परपेंडिकुलर. सर ऐसा कुछ हो सकता है नहीं, कि सर वो what I am- मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा है बिहाइंड, तो वो आगे पुश हो रहा है. सर फ्रिक्शन फोर्स बट मस्कुलर फोर्स जो भी है वो इंटरनल फोर्स है. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? मैं वही पूछ रहा हूँ. व्हाट इज एक्सटर्नल? बिकॉज ऑलरेडी हमने लिखा है कि ओनली एन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही पार्टिकल एक्सेलरेट करके जा सकता है. F is external force. नॉर्मल. हाँ, तो अभी नॉर्मल किधर एक्सेट करता है बेटा? परपेंडिकुलर. तो ये नॉर्मल फोर्स की वजह से इस तरफ एक्सेलरेशन हो सकता है? ये नॉर्मल की वजह से इस तरफ एक्सेलरेशन हो सकता है ये डायरेक्शन में? इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है शायद से. नहीं है. तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो पार्टिकल मूव करेगा ही नहीं, तो न्यूटन गलत हो गया. हम तो जा रहे हैं टू बी, है ना, हम लोग वो करके जा सकते हैं टू बी. बोलो व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स?
सर एक्सटर्नल फोर्स ठीक है, तभी हमने ऐसा कंक्लूजन में आ गया, इसमें mg हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को पता नहीं है नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन एक हो सकता है, वेट हो सकता है, एक फ्रिक्शन हो सकता है, इसके अलावा कुछ फोर्सेस ही नहीं है। ठीक है, अभी सेकंड स्टेटमेंट में हमने फर्स्ट लॉज है हमने पहले लिखा है, if f is equal to 0, a is equal to 0, if f is not equal to 0, then a will not be equal to 0। उसके साथ एक और चीज याद रखो, f एक वेक्टर क्वांटिटी है और a भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, f का डायरेक्शन और a का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। कौन सा डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा वो डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, मींस द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अभी हमने फाइंड आउट किया डिफरेंट फोर्सेस, एक mg हो गया, बट mg डाउनवर्ड में है तो पार्टिकल को राइट में एक्सर्ट नहीं करेगा एक्सेलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है तो भी इट विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट। सो हमने जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट किया है वो गलत है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट होना चाहिए, एक्सीलरेशन मतलब डायरेक्शन में होना चाहिए। बिकॉज इफ अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B, इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, तो ओनली वन फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सेलरेशन, बिकॉज इसके अलावा और कुछ एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है हमारे पास, तो वी शुड से दैट द फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। इज इट करेक्ट? फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट एंड द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, इज इट करेक्ट? No, sir. नो है, नो इट इज Yes, करेक्ट। sir. It is सर correct. फ्रिक्शन बिकॉज अगर जब हमने वॉक करेगा तो हम लोग किस तरफ पुश करते हैं, हम लोग बैक की तरफ टुवर्ड्स ना, हम लोग पीछे की तरफ हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो फ्रिक्शन हमारे ऊपर किधर एक्सर्ट करेगा? आगे की तरफ। हाँ सर, आगे तरफ। तो फ्रिक्शन इज नॉट ट्राइंग टू अपोज द मोशन, फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू अपोज द रिलेटिव मोशन, बट इट रिलेटिव टू द ग्राउंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो किधर मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है? पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको अपोज करेगा एंड फ्रिक्शन इज एक्सर्टिंग in the direction of like acceleration Okay. over here in this situation। okay, तो फ्रिक्शन के लिए हमारे पास सेपरेट एक चैप्टर है, उसमें हम लोग मतलब कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेगा। इधर मैंने डिस्कस करने का रीजन यही है कि ये फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। तो आपने ऐसा कुछ सिचुएशन में आ गया, आपको नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता है, नेट फोर्स का डायरेक्शन पता नहीं है, so we can always take the direction of net acceleration will be equal to the direction of net force। okay, if friction का direction समझ में आने के लिए we can take one more example। like मान लो if बोलो बेटा। सर अगर ये सेम अगर स्पेस में हो रहा है तो सर स्पेस में तो फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो सर वहां पे कैसे होगा मूवमेंट? तो वो मूव नहीं कर सकता ना, तो सर स्पेस में मूव होते हैं ना, आप खुद ही जाके वॉक नहीं कर सकता है, there should be an external force। सर कैन यू एक्सटर्नल फोर्स मतलब पुश करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। यस यस यस। तो अगर मान लो ये मान लो गाड़ी का टायर है, ठीक है, और गाड़ी आगे जा रहा है टुवर्ड्स राइट में एक्सेलरेट करके जा रहा है, ठीक है, तो ये गाड़ी के टायर के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा? सर वो भी राइट के डायरेक्शन, राइट में करेगा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन, ये टुवर्ड्स राइट में एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये जो टायर है वो टायर कैसे रोटेट करेगा? ये जो टायर है वो टायर ऐसा रोटेट करेगा अगर गाड़ी आगे जाना बोले तो। ठीक है, तो आप देख सकता है आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज, तो आप देख सकता है द पॉइंट है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, वो किधर जाएगा? राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है? वो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में जा रहा है, बिकॉज ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट किधर जाने के लिए कोशिश कर रहा है? इस तरफ। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन विल एक्सर्ट अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। करेक्ट, बट गाड़ी किधर जा रहा है? आगे जा रहा है। तो अब देखो ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, नॉट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम थिंग हम लोग जब वॉक करेगा तो हम लोग के पीछे की तरफ पुश करता है ग्राउंड को, तो ग्राउंड हमारे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ एक्सर्ट करेगा ताकि हम लोग आगे जा सकता है। करेक्ट, वो हम फ्रिक्शन में मतलब विल डिस्कस इट इन डिटेल, बट अभी ये तीनों जो पॉइंट है उसको आप याद रखना है। S equal to 0, A is equal to 0, F is not equal to 0, A is not equal to 0, और F का डायरेक्शन और A का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। समझा? Just write down this one।
डाउन स्टेट ऑफ रेस्ट, हमने जो पहले स्टेटमेंट लिखा है उसके बाद ही लिखना है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन, state of rest or uniform motion along a straight line, state of rest or uniform motion along a straight line, along a straight line represents, along a straight line represents that acceleration is zero, represents that acceleration is zero, represents that acceleration is zero. Next point, only an external force, only an external force, only an external force can create acceleration. Only an external force can create acceleration. Only an external force can create acceleration. Next point, if net external force is equal to zero, if net external force is equal to zero, if net external force equal to zero, acceleration is equals to 0. Acceleration is equal to zero. Acceleration is equal to zero. Is equal to zero. So we can write A is equal to zero if F is equal to zero. Next point, if net acceleration is not equal to zero, if net external force, if net external force, if net external force is not equal to zero, is not equal to zero, then acceleration cannot be equal to zero. Then acceleration cannot be equal to zero. Cannot be equal to zero. इसके साथ one more point है, the direction of net acceleration, the direction of net acceleration should be along the direction of net acceleration should be along the direction of net external force, direction of net external force. हेलो सर। बोलो बेटा। सर जो आपने टायर वाला एग्जांपल लिया था उसमें हम लोग ने फ्रिक्शनल फोर्स किया था ना। यस, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। यस, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। बोलो। हाँ पर सर वो तो अपोजिट ही रहता है ना, तो कैसे सेम रह सकता है डायरेक्शन? नहीं, अपोजिट नहीं रहता। तब को इसलिए ऐसा, मतलब आपको ऐसा कोई पढ़ा है कि फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन, फिर फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन, इसलिए आपको लगता है कि पीछे की तरफ से एक्सर्ट कर रहा है। वो गाड़ी अगर आगे एक्सीलरेट करके जा रहा है तो वही डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। तो सर जब मून वॉक किया जाता है तो सर मतलब फोर्स पीछे की तरफ होता है ना? नहीं, मतलब आप किधर एक्सेलरेट कर रहा है वही डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए, फ्रिक्शन का डायरेक्शन होना चाहिए। वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, नॉट द मोशन।
Along with that, you can write. आपने पढ़ा होगा what is inertia? What is inertia? So inertia. Ability to stay in rest. Yeah, the ability to stay in rest or inability to of a body to change its state of rest or if it's uniform motion along a straight line is known as inertia. अब लिखो. Sir, The external force inability भी बोल सकते हैं ना बिना inertia external को? force नहीं external force के बिना वो move नहीं कर सकते उसको inertia बोलता है. Okay. So we can write the inability. इसके साथ ही लिखना है the inability of a body to change the inability of a body to change its state of rest or of its uniform motion along a straight line is known as inertia. Along a straight line is known as inertia. Okay. तो कल से आप लोग प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देखने के लिए आपको वीडियो भी ऑन करना पड़ेगा. ठीक है, तो कल से प्रॉपर ड्रेस वगैरह पहन के आना है. ठीक है, और कोई भी किसी को रैंडमली बोल सकता है आपको वीडियो ऑन करने के लिए. तो अगर बैकग्राउंड में कुछ इश्यूज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका वीडियो भी ऑन करके रखना है कल से. ओके सर. अगर और कुछ इश्यूज है तो ऑन करने का जरूरत नहीं है, बट इफ यू फील दैट देयर इज नो प्रॉब्लम्स देन यू कैन ऑन. और वीडियो ऑन करने के बाद स्क्रीन में देखे बैठना है, बाकी का वीडियो मत देखना है. ठीक है, so I'll continue in next class. Thank you. Okay sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.